जाता है, तो अपने से अपने बैंक में जाएगा और बैंक से सामने वाले बैंक में जाएगा, सामने वाले पर्सन के बैंक में जाएगा। ओके, सो रोहित अकाउंट डेबिट। और बैंक चार्जेस तो हमेशा बैंक के थ्रू पे होता है, आपने देखा होगा पासबुक में कटता है जो हर 3 महीने 6 महीने, ये बैंक ड्राफ्ट का चार्जेस है सेपरेटली, वैसे ही बैंक अकाउंट में से काट लेगा आपका। So bank charges to bank and combined entry would be Rohit account debit, bank charges debit to bank. Is this clear? Got it? बैंक चार्जेस कैश में भी पॉसिबल होता है, कोई कोई लोग होते हैं जिनका अकाउंट नहीं होता है, तो वो लोग कैश जमा करते हैं बैंक में और चार्जेस भी कैश में देते हैं और फिर वहां से चला जाता है। बट आपके अगर सिलेबस में कहीं दिख रहा नहीं है बैंक चार्जेस और बैंक ड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो हमेशा अज्यूम करने का बैंक के थ्रू। ओके, majority of the people do it via bank, so use bank. So Rohit, bank charges to bank. Fourth one, took a loan of 10,000 from Sonal at 12% per annum and deposited the same into the bank. Kirtana took a loan of 10,000 from Sonal at 12% and deposited the same into bank account debit to Sonal's loan account. Very good. It should be bank account debit to Sonal's लोन लिखो, या फिर बेटर इफ यू राइट 12% Sonal's लोन अकाउंट, ये इंटरेस्ट चिपका देने का। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% Sonal's लोन अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% Sonal's लोन अकाउंट। व्हाट्स योर अमाउंट? 10,000. Did you get all of you this entry? Any doubt? Can ask. Sonal से लोन लिया, Sonal is the giver and money went directly into the bank. Bank is the receiver, Sonal is the giver. Okay, so bank account debit to 12% Sonal's loan account. Okay. Fifth one, Jainam paid interest for 1 month on Sonal's loan by RTGS. पहले एंट्री बता, एंट्री क्या होगी इसकी? Interest account debit to bank account. Very good. Interest account debit to bank, again NMBT by पोदा। ध्यान से आपको क्या लिखना है यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन Sonal's लोन अकाउंट डेबिट। खाली इंटरेस्ट मत लिखो, इंटरेस्ट भी राइट है, रॉन्ग नहीं है, बट थोड़ा डिटेल में बताओगे बेटर है, दे एक्सपेक्ट यू NMBT by and all. इंटरेस्ट ऑन Sonal's लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन Sonal's लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, एक्सपेंस डेबिट, पैसा RTGS से जा रहा है। हाउ मेनी मंथ का इंटरेस्ट आर वी पेइंग? 1 month. Can you tell me, Jainam, how will you calculate this interest? PNR वाला फॉर्मूला है। Unmute and talk. Directly percentage wise भी कर सकते हैं। 1 month लेना है, ईयर का नहीं है। Okay, so 10,000 into 1 1/12 into 12 1/12 आएगा ना, 100 interest into 12/100. 12/100 is the rate and 1/12 क्यों? 1 month है ना, 1 किया तो 1 year हो जाएगा, इसलिए 1 2 3 लिखते थे ना स्कूल में, 1 2 3 years थे। देखो ईयर का नहीं करना है, मंथ का करना है, ठीक है? मंथ का करना है तो मंथ में करने का। व्हाट इफ आई वुड हैव आस्क्ड यू इंटरेस्ट टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 10 days? 10 days का इंटरेस्ट कैसे करोगे आप? 10/365 10/365 कर देने का, ठीक है? 10/365 हो जाएगा, डेज है ना वहां पे, तो डेज में कन्वर्ट कर देने का। तो ये कितना आ रहा है आपका कैलकुलेशन के आंसर में? 100 रुपीज आ रहा है। सो इंटरेस्ट ऑन Sonal's लोन टू बैंक इज 100 रुपीज। इज दिस क्लियर? ओके, next one will answer Veer. Proprietor borrowed rupees 50,000 from a friend at 12% per annum and deposited 30% in the current account. bank. What do you mean by current account? पहले तो current account पता है सबको। What do you mean by current account? What do you mean by current account, guys? It gives no interest. It gives no interest.
हाँ, it gives no interest, right? And you can borrow above. You can borrow extra You can amount. You can borrow extra. If you have a balance of 10,000, you can एक borrow ज्यादा, overdraft facility. 12,000. Basically current account का मतलब क्या है? Business का बैंक अकाउंट है वो. Business always opens current account. घर वाले open savings account, business opens current account. That's the bank. Yeah, tell me, Veer. Bank account debit 15,000. Okay, Account debit 35,000. correct. To 12% friends loan account. perfect. Okay, देखो यहाँ पे borrow कर रहे हो, friend है मतलब capital नहीं हो जाएगा. I told you many times, whenever you see the term borrow, ईशा जी, whenever you see the term borrow का मतलब उधार, okay, borrow का मतलब loan. So बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना डाला है आपने? 50,000 में से 30% डाला है, तो 15,000 गया बैंक में. कैश अकाउंट डेबिट 70% कैश में है, 35. टू फ्रेंड्स लोन भी लिख सकते हो, बेटर 12% फ्रेंड्स लोन अकाउंट, 12% फ्रेंड्स लोन. अभी इधर नाम नहीं दिया तो वी आर राइटिंग फ्रेंड्स लोन. अगर नाम दिया होता तो नाम का लोन. या So 30% is brought to the bank, and the remaining 70%, it is not told that it is used as cash. It could also be drawings. The people No, have no, no, taken no, it no. To be cash. ड्रॉइंग्स है ना, तो they'll specify that he withdrew personal use. You can't assume this. Got it? अगर कुछ नहीं दिया है ना, मतलब बिजनेस में ही आ रहा है सब. पर्सनल का अच्छे से हिंट होगा सब में. हाउस रेंट, लाइफ इंश्योरेंस, सन स्कूल फीस, गिफ्ट फ्रॉम मदर फादर, पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल शेयर्स, ऐसे पर्सनल का हिंट दिया होगा. पर्सनल का हिंट होगा सब में. कुछ नहीं दिया मतलब सब बिजनेस का है. ओके, सो बैंक मतलब 30, उसने बोरो किया टोटल 50, लोन है 50 का, उसमें से 30% बैंक में डाला, तो बैंक में 15, कैश में 35. अगर पूरा का पूरा बैंक में डाला तो बैंक टू लोन, पूरा का पूरा कैश में आता, कैश टू लोन. ऑलराइट, okay, next one, 7th one, who will answer this? Jia Shah. Interest due for 1 month on friend's loan. Interest due for 1 month on friend's loan. Jia Shah. Entry bolo. Friends loan account to outstanding interest. We'll try. Moksh. Interest due. हाँ सर इंटरेस्ट ऑन फ्रेंड्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. और wrong. Priyal Parekh, would you like to try? interest on friends loan account debit to outstanding interest on friends loan account. Exactly. Interest on friends loan to outstanding interest on friends loan. क्यों? Because the interest is due. Due मतलब paid की payable. Payable होता है. Payable जब होता है तब आप कौन सा अकाउंट यूज करते हो उधर? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. Interest is your expense, debit all expenses and losses, okay, to outstanding interest. क्यों? क्योंकि accrual system follow कर रहे हो ना. accrual system क्या बोलता है? जब भी आपका expense का time आ जाए तो expense को debit करना है. expense incur हो गया है, ठीक है. अब पैसे देने बाकी है, वो तो आप फ्यूचर में दे दो एज अ लायबिलिटी. जैसे आप क्रेडिट परचेज करते हो, क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हो ना बुक में, परचेज टू क्रेडिटर. ऐसा थोड़ी बोलते हो पैसे फ्यूचर में देंगे तो फ्यूचर में परचेज रिकॉर्ड करेंगे. नहीं, परचेज तो अभी हो गया, एक्सपेंस तो इनकर हो गया. वैसे ही इंटरेस्ट इनकर हो चुका है तो इंटरेस्ट को डेबिट करना है, तो पैसा देना बाकी है. तो जैसे आप क्रेडिटर को क्रेडिट करते हो परचेज टू क्रेडिटर में, वैसे यहाँ पे आप किसको क्रेडिट करोगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को क्रेडिट करोगे. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग interest account. You can write interest to outstanding interest, or you can write interest on friends loan to outstanding interest on friends loan, तो भी चलेगा. Interest on 12% friends loan. नहीं, interest on friends loan, वो उधर 12% का जरूरत नहीं. Interest on friends loan account debit to outstanding interest, या फिर interest on friends loan to outstanding interest on friends loan. Simply interest to outstanding interest also will do. इंटरेस्ट टू कैश नहीं लिखा मैंने. क्यों इंटरेस्ट टू कैश नहीं लिखा? बिकॉज आई एम नॉट द इंटरेस्ट.
It is payable. इट इज पेएबल। तो एक्सपेंस का टाइम आ गया तो एक्सपेंस को डेबिट करके दिखाई दो। आपका टैक्स वाला डिपार्टमेंट का जो बंदा आएगा ना आपका टैक्स कैलकुलेशन के लिए, वो भी यही देखेगा कि अगर आपका इंटरेस्ट देना बाकी है तो भी वो दिखाओ, वो खर्चा आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो वो खर्चा आप क्लेम कर सकते हो। खर्चा क्लेम करने का मतलब क्या, आप टैक्स किस पे पे करते हो, प्रॉफिट पे पे करते हो। तो इनकम माइनस एक्सपेंस इज प्रॉफिट ना, तो ये इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ अवर एक्सपेंस। ये एक्सपेंस इनकर हो चुका है, पैसे आप आगे पीछे दो चलेगा, एक्सपेंस जैसे टाइम आया डेबिट कर देना है। तो अगर पे किया होता तो इंटरेस्ट टू कैश, पेएबल रखा है तो इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अच्छा, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मैं समझो नेक्स्ट मंथ पे करता हूं, एक्चुअली पैसे देता हूं, देन व्हाट एंट्री विल आई पास फॉर दैट? Outstanding rent account debit to Outstanding interest to cash. cash. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। Cash. जैसे आप क्रेडिटर टू कैश करते हो ना, अभी आपने क्रेडिट पे गुड्स खरीदे तो क्या एंट्री, क्या परचेज टू क्रेडिटर। फिर आप जब पे करोगे तभी क्या करोगे, क्रेडिटर टू कैश। सेम वे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज नथिंग बट क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज लाइक योर क्रेडिटर, उस बंदे को देना बाकी है। इसलिए याद है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ट्रेडिशनल सिस्टम में क्लासिफिकेशन भी किया था हमने, इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, उस बंदे को पैसा देना बाकी है। रिमेंबर, outstanding, prepaid, receivable, received in advance, all four are representative personal. So interest on bank loan, interest on friends loan to outstanding interest on friends loan, how to calculate this, can you tell me, Moksh? Sir, 50,000 into 12 upon 100 into 1 upon 12. Very good, ये भी 1 month का, तो into 12 upon 100 into 1 upon 12 500 rupees, 500 500। ये हमने खान वाले समय भी किया था, इफ यू रिमेंबर, इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू था आपटेज लोन वाला। सो ड्यू ये चीज याद रखना, ठीक है, ड्यू ये चीज याद रखना। व्हाट इफ आई पे नेक्स्ट मंथ का इंटरेस्ट ऑल्सो, अभी 500 में नेक्स्ट मंथ का भी अभी पे कर रहा हूँ, Prepaid interest to cash. तो प्रीपेड इंटरेस्ट टू कैश। फिर क्यों इंटरेस्ट टू कैश नहीं कर सकते, क्यों इंटरेस्ट टू कैश नहीं किया? Because it is paid in Because advance. we have paid already. क्योंकि अभी तक इंटरेस्ट का टाइम नहीं आया है, अभी तक इनकर नहीं हुआ है, एक्सपेंस काम नहीं हुआ है अभी तक। ओके, एडवांस में कुछ कर रहे हो ना तो प्रीपेड इंटरेस्ट टू कैश, और फिर नेक्स्ट मंथ इसका एडजस्टमेंट एंट्री होगा इंटरेस्ट टू प्रीपेड। इंटरेस्ट विल बी डेबिटेड, टाइम आएगा तभी, और कैश नहीं दोगे क्योंकि कैश आपने ऑलरेडी दिया हुआ है। सो टू प्रीपेड इंटरेस्ट टू प्रीपेड इंटरेस्ट करके आप उसको एडजस्टमेंट कर दो नेक्स्ट मंथ। So hope this is clear now. Interest to outstanding interest, payable interest, all of you got that? Same is the concept of income. Income receivable है तो income receivable to income, वो भी आएगा आगे, करेंगे हम लोग। Then 8th one, gave a loan of 5,000 to Ajay by UPI. Give a loan of 5,000 to Ajay by UPI. Nishant Parekh. What should be the entry for this? Give a loan of 5,000 to Ajay by UPI. Nishant Parekh. Nishant. Okay, Dishita. Give a loan of rupees 5,000 to Ajay by UPI. Dishita. Loan to Ajay account, debit to bank account. Very good. Loan to Ajay account, debit to bank account. Loan to Ajay account, debit to bank account. You can write Ajay's loan to bank also, लेकिन मैंने आपको बताया था Ajay's loan आप जनरली कब यूज करते हो? When we take a loan from Ajay. When you take a loan. But when you give a loan, you better use loan to Ajay. ठीक है? Vidushi, how was your paper test? It was nice. खुद से लिखा था पूरा? हाँ पूरा खुद लिखा था. Had studied. हाँ सच्ची. Very good. 29 you have scored. Good. Loan to Ajay account, debit to cash account के जगह बैंक अकाउंट, क्योंकि यूपीआई है। यूपीआई आपको बोला था, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, रिमेंबर दिस यूपीआई।
गूगल पे, भीम ऐप, पेटीएम, फोन पे, ओके, ये बैंक के थ्रू ही जाएंगे आपके पैसे। तो यूपीआई तो लोन टू अजय अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना है ये? 5,000 rupees. All of you got that? बोलो, any doubts? The first problem. सर ये 12% लोन टू अजय लिख सकते हैं ना? 12% रेट दिया है क्या? नहीं अजय हाँ दिया, कुछ नहीं दिया, नहीं दिया। इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। okay. यहाँ पे चलते रहता है इंटरेस्ट फ्री लोन सोल प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप में। कंपनी में कभी इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं होता। कंपनी में अनसिक्योर्ड लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन मतलब ब्राइब्स। आपको पता करना कि पॉलिटिशियन ने कंपनी में कितना पैसा डाला है, 2 नंबर का कितना पैसा है, उसका बैलेंस शीट उठाओ, उसमें जो आपको अनसिक्योर्ड लोन दिख रहा है, जो इंटरेस्ट फ्री लोन दिख रहा है, वो सब ब्राइब्स होता है। उसको व्हाइट में दिखाने के लिए लोन्स के फॉर्म में, और फिर उसको राइट ऑफ कर देते हैं, आप चुकाओगे ही नहीं उसको। सामने वाले का बैड, वो पॉलिटिशियन को चाहिए भी नहीं, उसको खाली व्हाइट में कन्वर्ट करना था, उसको पैसे मिल जाएंगे प्रॉफिट के थ्रू। ऐसा होता है। ब्लैक का पैसा व्हाइट, ब्लैक का पैसा व्हाइट करने का पूछ रहा था ना कोई रास्ता है कि नहीं, तो ये कंपनीज में ये होता है, ब्लैक का पैसा व्हाइट करना मत, ध्यान रखना। देन लोन्स हमेशा इंटरेस्ट वाला होता है, ब्याज लगता है लोन पे, कोई फोकट का लोन देता नहीं है, देयर आर नो फ्री लंचेस। एज वेल एज सिक्योरिटी भी मांगते हैं, अनसिक्योर्ड लोन नहीं होता कभी। कोई भी लोन अनसिक्योर्ड आपको दिखेगा बहुत बार ट्रांजैक्शन में, बट अनसिक्योर्ड लोन प्रैक्टिकली कोई नहीं। आप सोचो ना, आपसे किसी ने लोन मांगा, आप क्या उठा के दे दोगे? 10 लाख रुपए ऐसे ही, 50 लाख रुपए ऐसे ही दे दोगे? आप कुछ मांगोगे ना उससे, कंपनी की गारंटी मांगोगे, पर्सनल गारंटी मांगते हो आप, पर्सनल बॉन्ड होता है किसी का। पर्सनल बॉन्ड्स भी एक्चुअली प्रॉपर्टी पेपर is not a good idea. You should have a tangible property, yes, like property, like car, like gold, like jewelry. So you need to have some asset against which you can give the loan, and that too, ये सब गोल्ड लोन सुना होगा आपने, मन्नापुरम, मुथूट फाइनेंस एंड ऑल, घर पे पड़ा हो सोना तो फिर का एक रोना, सुना है? तो ये आप जब लोन लेने जाते हो तब आपको पूरे वैल्यू का लोन भी नहीं देता है वो बैंक। आप अगर 100 रुपये का गोल्ड रखोगे ना बैंक में, तो आपको 100 रुपये का लोन नहीं मिलेगा। कितने रुपीस का लोन मिलेगा आपको? 60 रुपीस का लोन मिलेगा, 55 to 60 रुपीस का, दैट्स इट। आप अगर 1 लाख रुपीस का गोल्ड देते हो बैंक में, तो आपको खाली 60,000 का लोन देगा बैंक, ओके। तो इतना मार्जिन वो सेफ्टी के लिए रखता है बैंक, आपको फुल वैल्यू का लोन भी नहीं मिलता है। तो बिना सिक्योरिटी का तो लोन ही भूल जाओ, विथ सिक्योरिटी आपको कम वैल्यू का मिलता है, ओके। तो ऐसा होता है, हमेशा ध्यान रखना। Sir, Second, they take a proof of our assets also, no, when they Yes. give us a loan. obviously मैं तो बोलूंगा ये बाजू वाले का बिल्डिंग मेरा बिल्डिंग है, मेरे को लोन दो, थोड़ी मानेगा। मेरे नाम पे होना चाहिए ना, दोस्त डॉक्यूमेंट, अग्रीमेंट होना चाहिए प्रॉपर्टी का मेरे नाम पे, तो ही मेरे को लोन मिलेगा, ऑब्वियसली, ओके। सेकेंड वन, स्मॉल सम 4 ट्रांजैक्शंस, उधर ही आप कंटिन्यू कर सकते हो। paid ₹100 to Ajay on behalf of Vijay. Kashish, we have done this. Paid ₹100 to Ajay on behalf of Vijay. Vijay's account debit to cash account. Very good. Vijay account debit to cash. ये क्लिक हुआ सबको? क्यों Vijay to cash and why not Ajay to cash? क्योंकि उसके बिहाफ पे आप पे कर रहे हो। आपका डीलिंग किसके साथ हो रहा है? अजय के साथ कि विजय के साथ? विजय के साथ। विजय के साथ। आपका क्रेडिटर कौन है? विजय है। विजय से आपने गुड्स खरीदा होगा, उसके बिहाफ पे आप कुछ भी करो, ओके, वो मैटर नहीं करता है, आपको विजय से ही सेटल करना है अकाउंट। विजय टू कैश, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, बंसी जोशी रिसीव्ड ₹200 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ रहीम। क्या होना चाहिए एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट। वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट। बंसी, हाउ वाज योर पेपर? Good sir, but I found some problems difficult. हाँ, सम नहीं मैनी, काफी मिस्टेक्स दिखा मेरे को, नीड टू प्रैक्टिस। बंसी जी, काफी मिस्टेक्स था। Yes sir. I'll give you some practice problems, okay?
टुडे और टुमारो यू विल गेट द पेपर्स, आपको पेपर्स मिल जाएंगे. Saturday you can clear the queries in the lecture. You can ask me on WhatsApp also if you have any queries on papers. Before the lecture also you can clear them. And suppose मेरे को ज़्यादा mistakes दिखा है, किसी का कुछ concepts clear नहीं है, तो I'll give you some problems for practice. Okay, so do solve them. So it will clear up those concepts also. You can clear with me the doubts also if you have any doubts related to those. Okay. So do practice couple of problems, 3 problems I'll give you to practice. I feel जिसका थोड़ा mistakes है उसका. Next test will be after next Sunday. In the मतलब not this week. ये जो coming week है उसमें नहीं, उसके बाद वाले week में कभी भी आएगा, मैं आपको announce करके बता दूंगा. 4-5 days in advance. Okay. And that test will have all the things done till date. Okay. Opening entry, GST, CDTD combinations, big entries. Okay. All entire journal till date, whatever we have done. Okay. So this is cash to Rahim. The third one, paid rent rupees 300 on behalf of Rohit. Paid rent rupees 300 on behalf of Rohit. Preet Vora, would you like to answer this? Rohit account debit to cash account. Very good. Rohit account debit to cash. अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत होना सर, रेंट दिया है, रेंट इज एन एक्सपेंस, भैया हमारा थोड़ी है. पेड रेंट ऑन बिहाफ ऑफ रोहित है ना, उसका रेंट है, हमारा थोड़ी. हम अपने बुक में अपना ही एक्सपेंस डेबिट करते हैं, अपना रेंट है तो वी विल डेबिट. दूसरे किसी का हम क्यों करें? वी आर द पेइंग रोहित ओनली. याद है कल एक ट्रांजैक्शन किया था, वो सेटल किया था रितु को, कॉम्प्लिकेटेड वन. रितु के बिहाफ पे रेंट पे किया, रितु को कंप्यूटर दिया, उधर भी वही था, रितु टू कैश. इधर रोहित टू कैश, रोहित सेटल हो रहा है 300 से. Sir, can we write Rohit's rent account? No, it is only Rohit. Rohit's rent जैसा अकाउंट, रोहित रेंट कोई अकाउंट ही नहीं है. You had purchased good from Rohit. So what entry would have passed? Purchase to Rohit. Now you are settling Rohit. You went to Rohit's home to pay him 300. Rohit was not at his place. Rohit told that मेरा बाजू में मेरा मकान मालिक रहता है, लैंडलॉर्ड रहता है, प्लीज गो एंड पे हिम, मेरा रेंट पेंडिंग है. मैंने बोला ठीक है, मैं उसको दे देता हूँ. बट डज दैट मीन दैट्स माय एक्सपेंस और रेंट और एनीथिंग लाइक दैट? नो. मैं तो क्या बोलेगा, अपना अकाउंट सेटल. मेरे बुक में तो मैं क्या सोचेगा, आई हैव पेड टू रोहित, रोहित टू कैश, सेम अकाउंट. Even if it is for Rohit's personal use, we write whatever. रोहित ने बोला बाजू में नवरात्रि का आदमी आया, डांडिया पास के लिए पैसा देना है, उसको दे दो. मैंने दे दिया. मैं फलाना ढिमका किसको भी दूं, बट आई एम पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ रोहित ओनली ना. कल उठ के रोहित कैन नॉट आस्क मी अगेन 300 रुपीज, राइट? इफ ही आस्क मी व्हाट आई विल टेल हिम, आई हैव पेड, तेरे बिहाफ पे दिया था, अपना अकाउंट सेटल. तो मेरे बुक में तो आई एम पेइंग टू रोहित ओनली, रोहित टू कैश. राइट? That physical delivery of cash is not important. You understand the essence of the transaction. What is happening? You are settling a creditor. Creditor settle हो रहा है आपका, उसी को पैसा जा रहा है ultimately. Now the next one, fourth one. This one is good. Let's see. Mohit paid rent on our behalf. Rent account debit to Mohit account. To Mohit's account. Rent to Mohit. Mohit paid rent on our behalf. मतलब अपना रेंट मोहित ने पे किया. अपना रेंट हम पे करते तो क्या होता है एंट्री? Rent to cash. अपना रेंट मोहित ने पे किया तो क्या होगा एंट्री? Rent to Mohit. रेंट तो अपना है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस, बट मोहित इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर. मतलब रेंट का टाइम आ गया था तो डेबिट कर लिया एक्सपेंस. पैसे हमारे पास से नहीं गए हैं, मोहित ने दिए हैं, तो क्रेडिट द गिवर, मोहित इज द गिवर, अमाउंट इज 400. रेंट टू मोहित तो कर दिया तुमने. अब अपने हमने तो पैसे दिए नहीं, हमें देने हैं बाकी है ना, हम किसको देंगे अभी पैसे ये 400 रुपीज? Who should we pay this 400 to now? After a month or 15 days or 20? You don't have to pay. You don't have to pay to anyone. On behalf, he paid. We don't have to pay. अपना रेंट था हमारे पास से. We have to pay to Mohit after 1 month or. देखो I'll tell you. लैंडलॉर्ड. अपने को रेंट देना था 400, बराबर है. हम लोग आउट ऑफ टाउन थे,
हमने मोहित को फोन किया, मोहित जरा फटाफट जाके रेंट दे के आना मेरा लैंडलॉर्ड को 400 रुपीज, मैं तेरे को वापस आके दे देता हूँ। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, मैं तेरे को वापस आके दे देता हूँ। तो मोहित ने अभी वो 400 रुपए दिए हैं हमारे बिहाफ पे, तो हमने क्या एंट्री किया, रेंट टू मोहित, अपना एक्सपेंस डेबिट टू मोहित इज द गिवर। तो वापस आके आप किसको पैसे तो देने पड़ेंगे ना यार। Sir, it can also be, you know, that he had to pay So us. why we don't have to pay to anyone? अगर मोहित वॉज अवर डेटर तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर मोहित वॉज अवर डेटर तो प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको पे करने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट अगर मोहित हमारा डेटर था ही नहीं, तो he was a new person, then it would be Mohit's loan account to cash. हाँ It would be as loan. मोहित इधर ऊपर क्या लिखा है तुमने, मोहित लिखा है ना, then use मोहित only, मोहित to cash, got it? It is like a loan only, थोड़ा एक 400 रुपए का लोन लिया हमने मोहित से, बट लोन अकाउंट एक्चुअल बोरो करते हो तब लिखते हो, जब ऑन बिहाफ वगैरह वो पे करता है ना, तो यूज पार्टीज अकाउंट ओनली, तो लोन लिखने की जरूरत नहीं। तो व्हेन यू एक्चुअली कम बैक फ्रॉम हॉलीडे एंड पे मोहित, एंट्री विल बी व्हाट, मोहित टू कैश, मोहित टू कैश 400। अगर मोहित इज अ न्यू बंदा, देन अगर मोहित इज योर डेटर ओनली, अगर आपको मोहित से लेने थे 400 रुपीज, तो फिर कोई देने की जरूरत, अकाउंट इज सेटल्ड, देन हिज अकाउंट इज सेटल्ड, परफेक्ट, देन कुछ देने का जरूरत नहीं। Is this clear, all of you? So there are 3 possible scenarios for expense, and there are same 3 possible scenarios for income. See, what are the 3 scenarios? देखो ध्यान से, we paid rent, हमने अपना रेंट पे किया, क्या एंट्री करेंगे, Rent to cash. Rent to cash. rent to cash, expense to cash, okay? We paid rent on behalf of Ram. Ram account debit to Ram to account. cash. Ram to cash, क्योंकि हमारा रेंट नहीं है तो हम डेबिट नहीं कर सकते हैं, वी आर इनडायरेक्टली पेइंग राम, राम से पैसा लेना बाकी है, या सेटल कर रहे हैं राम को। एंड थर्ड, राम पेड रेंट ऑन आवर बिहाफ, Ram paid rent on our behalf. Rent to Ram. Rent to Ram. Rent account debit to Ram account. Rent account debit to Ram account. हमारा expense है लेकिन पैसे नहीं जा रहे हैं. Ram is the giver. So credit the giver. Is this clear, all of you? Same 3 lines पे think about income. Okay. We received rent. We received rent. What is the entry? Cash to rent. Cash to rent. Rent. Cash to rent. Cash आया, rent is the income, right? Hello. We received rent. सुनना, we received rent on behalf of Ram. Cash to Ram. We received rent on behalf of Ram. Cash to rent. सोचो थोड़ा. Ram to rent. Cash to rent. We received rent on behalf of, मतलब रेंट हमारा नहीं है, उसका रेंट हम रिसीव कर रहे हैं, वो बाहर गांव गया, हम उसका रेंट रिसीव कर रहे हैं. Cash to rent. Cash to Ram. पैसा आ रहा है ना अपने पास, Cash to Ram. Cash to Ram. देखो कैश आ रहा है, Ram. Cash to Ram. कैश तो आ रहा है तो कैश डेबिट करना पड़ेगा. बट इज रेंट अवर इनकम? नो, राम की इनकम है. देखो राम ने अपनी जगह रेंट पे दी हुई है, उसका टेनेंट आया रेंट देने को, वो था नहीं, तो राम ने बोला प्लीज कलेक्ट, तो हमने कलेक्ट कर लिया, तो कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन. बट इज रेंट अवर इनकम? नो. तो यू कैन नॉट क्रेडिट रेंट, तो क्रेडिट हु? राम. मतलब क्या, राम को पैसा देना बाकी है अभी, ये तुम्हारा पैसा है नहीं, जब राम आएगा तभी राम टू कैश करके उसको दे दोगे पैसा. इज दिस क्लियर? सो व्हेन यू रिसीव समवन एल्सेस इनकम, it will be cash to party and not cash to income. पैसा आ रहा है बट इनकम क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा इनकम नहीं. समझ में आया ये वाला कंसेप्ट? तीसरा क्या होगा बताओ? राम received our rent.
या राम रिसीव्ड रेंट ऑन आवर बिहाफ, अपना रेंट राम ने रिसीव किया, मिलना था अपने को, वो पैसा राम ने रिसीव किया है, क्या एंट्री करो? Our rent is received by Ram. Ram to cash. Ram to rent. Ram to rent. Ram to rent. Ram to cash. Ram to rent. Ram to rent. Cash. It's our rent, so it's our income. Yes, We it need is to our credit rent, so it is our income. So income should be credited definitely. Ram is the receiver. Cash coming in. And now Ram is the receiver. Now Ram is the receiver. तो अपने को राम से पैसा लेना बाकी है, राम से पैसा लेना बाकी। समझो हमने जगह रेंट पे दिया, हम बाहर गांव चले गए, तो कोई टेनेंट आया रेंट देने, मैंने बोला राम प्लीज कलेक्ट कर ले, वापस आके मैं तेरे से पैसे ले लूंगा। तो अभी मैं क्या एंट्री करूंगा जब राम कलेक्ट करेगा? राम टू रेंट, मेरा इनकम है, मेरा इनकम है, इनकम तुम्हारा है तो इनकम क्रेडिट होगा। पैसे नहीं आ रहे हैं तो यू कैन नॉट डेबिट कैश, तो किसको डेबिट करो? पार्टी को। और जब पार्टी से पैसे आएंगे तब कैश टू पार्टी कर देना, सेटल हो जाएगा। अल्टीमेट एंट्री इज कैश टू रेंट ओनली, बट दो हिस्सों में होगा, पहला राम टू रेंट और फिर कैश टू राम, जब राम से पैसे लोगे तब। इज दिस क्लियर? 6 scenarios once again. You pay your own rent. Tell me, you pay your own expense. What is the entry? Rent to cash. Expense to cash. You pay your own expense, expense to cash. You pay expense on someone else's behalf, Ajay's, Vijay's, Sanjay's behalf. Party to Party to cash. Party You to pay cash. expense on someone else's behalf, party to cash. Someone else pays your expense. party to Someone else pays your expense. Expense to party. हमारा expense है, expense debit होना ही चाहिए, expense debit to expense to party. expense to party. पार्टी को पैसा देना बाकी है, पेंडिंग रखो। Now income, you receive your own income, you receive your own rent, business receives own rent. Cash to income. Cash to income, cash to income. You receive rent on someone else, you received rent on behalf of Ram, you received rent on behalf of Ajay. Cash to party's party. name. Cash to party's name. Cash आ रहा है, debit what comes in, cash आ रहा है, रोकड़ा आ रहा है, yes. To rent को क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि रेंट अपना इनकम है ही नहीं, तो कैश टू पार्टी। And finally, someone else receives our income. Someone else receives our income. Party to इनकम तो Party हमारी है, to rent. तो हमारी क्रेडिट होनी चाहिए, बट पैसे हमें मिल रहे हैं। Are we getting the money? No. So we cannot debit cash. We have to debit party. So party to income. Is this clear? पार्टी से लेना बाकी है, उसको डेटर बना दिया। 6 कंसेप्ट समझ रहे हैं आपको? प्रैक्टिकल बिजनेस में बहुत 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 यूज होते हैं, बहुत, हर दिन यूज होते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो, ठीक है, आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो, आप बॉम्बे में हो, आपने गुड्स खरीदे हैं समझो पूना से, ओके, एक क्रेडिटर है जिससे आपने गुड्स खरीदे हैं पूना में वो क्रेडिटर है, और आपने वो गुड्स जिस डेटर को बेचे हैं, माल सप्लाई किया है, वो ही बाजू में रहता है, सम 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम पूना, वो डेटर उधर ही रहता है, ओके। तो आप क्या करोगे? आप वापस, अभी तो सब ऑनलाइन हो गया, पेमेंट तो काफी इजी है, बट अदरवाइज आप क्या बोलते हो? आप अपने क्रेडिटर को, आपको पैसा देना है, डेटर से पैसा लेना है, आप क्या बोलोगे डेटर को? प्लीज गो एंड पे माई क्रेडिटर। आप अपने डेटर को बोलोगे प्लीज गो एंड पे माई क्रेडिटर। तो डेटर है अजय, क्रेडिटर है विजय, आप बोलोगे अजय प्लीज पे टू विजय, मिस्टर अजय प्लीज पे टू विजय। तो अपने पास ना कैश आएगा ना कैश जाएगा, डायरेक्टली विजय इज द रिसीवर, अजय इज द गिवर, विजय अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, सेटल, वाया सेटल। तो ऐसा ऑन बिहाफ बहुत ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं आपके, ओके। आगे भी बहुत एग्जांपल देखेंगे हम लोग। तो अपना एक्सपेंस कोई और पे कर रहा है, किसी और का हम पे कर रहे हैं, बाद में रिसीव कर रहे हैं, ओके। अपनी इनकम कोई और, किसी और की हम इनकम रिसीव कर रहे हैं। यस, यार डाउट एनीवन? बीच में कोई था? Okay, so all 6 entries are clear. Tell me any doubt in this, very important ones. बढ़ो आगे, थर्ड सम पे जाओ। थर्ड सम बहुत ही इजी है सम है, देखो अभी देखो क्या दिया हुआ है थर्ड सम पे। बताओ मुझे, अपॉइंटेड अ मैनेजर सैलरी ऑफ 2000।
in the sixth one, if we are, if Ram is already our creditor, and if we are receiving rent, if he is receiving our rent, so do we assume that to be our payment, मतलब our rent received to him, or it is? Yes. Suppose you are my creditor for 400, Vidushi. I purchased goods from you of 400 rupees, right? So you came to my home to collect the money. I was not there. So I just called up my tenant. He is staying right beside me. बाजू में ही रहता है वो. तो मैं टेनेंट को बोला तेरे को रेंट मेरे को देना है ना, मेरे को मत दे, विदुषी को दे के जा. तो दिस एंट्री आई विल पास, विदुषी टू रेंट. मेरा रेंट इनकम हो गया, विदुषी इज द रिसीवर. और तुम भी सेटल हो गए, वो टेनेंट से भी रेंट लेने की जरूरत नहीं है, पैसे आ गए. समझा? दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, वाया सेटलमेंट. परफेक्ट. ओके, you can do this, and this happens practically business में काफी बारी होते रहता है ये. Appointed a manager with a salary of 2000. Tell me what is this? No entry. No entry, not a transaction. Placing an order क्या, sorry, appointment is not a transaction. Transaction कब होगा? जब आप उसको actually salary दोगे. When you actually pay the salary or it is incurred, then we have 500 rupee note with 500 rupee note. No entry. Cash against cash is not a transaction, hence no entry. Received free samples of 6,000. खाली received free samples of 6,000. Entry, since receiving samples. Receiving free sample is not a transaction, right? Receiving free sample is not a transaction, hence no entry. But आगे देखो सेकेंड हाफ में क्या दिया हुआ है. सोल्ड देम टू राज फॉर 7,000. हम लोग शाणे, हम लोग ने फ्री में सैंपल आया उसको भी बेच के पैसा बना लिया. वी आर सेलिंग, वी व्हाट अ फ्री सैंपल, व्हाट डू वी गेट इन फ्री सैंपल्स? गुड्स, राइट? तो वो गुड्स हमने बेच के पैसा बना लिया. तो ये क्या कर रहे हो? ये आप बेच रहे हो राज को ऑन कैश और क्रेडिट? क्रेडिट. तो इसका एंट्री आएगा कि नहीं, सोचो. Raj to sales. Yes, Raj to free sales. samples. No. Raj to sales. Either you can write Raj to sales, या बहुत नॉमिनल सा इनकम है, कभी कभार बेचते हो, you can write Raj to sundry income. नॉमिनल इनकम है तो राज टू सन्ड्री इनकम भी चलेगा. बट बेटर इट इज इफ यू यूज सेल्स. ओके, आगे जाके सब्सिडरी में भी सेम कंसेप्ट आएगा आपको. सब्सिडरी बुक्स Sale of free sample is not okay. No, these are goods ना. Goods whenever you sell, which account do you use? But it was free sample, so we need to mention the description in goods. That will be in narration. Description will be in narration. Free samples मतलब क्या है? फ्री में गुड्स आया तो your purchase value is 0 basically. And your sale value is 7,000. Entire 7,000 will be your profit when you calculate profit or loss. Got it? फ्री में गुड्स आया. अभी आपको आता होगा, ये स्कीम्स आता रहता है, पता है? मेडिसिन शॉप वाले को मिलते रहता है फ्री सैंपल, डॉक्टर्स को मिलते रहते हैं फ्री सैंपल्स मेडिसिन के, शॉपकीपर्स को मिलते रहता है. अपने अगर किसी का शॉप्स होगा, जनरल स्टोर होगा, लोको चोको पाई का मिलता है फ्री सैंपल, बिस्किट्स का फ्री सैंपल मिलता है. उसको फ्री में आया, वो बेच देगा, उसके सेल्स में चला जाएगा. दैट इज हिज इनकम. एंटायर सेल विल बी हिज इनकम. इज इट क्लियर? तो those free samples if you sell they become your income. That is like normal sale of goods. नरेशन में आप बता सकते हो फ्री सैंपल सोल्ड, तो आपको पता चल जाएगा. अकाउंट तो सेल्स डायरेक्टली. ओके, या बहुत कम यूज करते हो तो सन्ड्री इनकम, रेयरली करते हो तो राज टू सेल 7,000. तो ये ध्यान रखना, आप फ्री सैंपल रिसीव के वक्त इनकम रिकॉर्ड नहीं करनी है. फ्री सैंपल रिसीव्ड इज नो एंट्री ड्यू टू कंजर्वेटिज्म. याद है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट? लॉसेस दिखाओ लेकिन गेन्स कभी भी एडवांस में नहीं दिखाना है आपको. तो ये गेन आपका बेचते वक्त गेन हो रहा है ना, बेचोगे तब सेल की इनकम जनरेट हो रही है, तब रिकॉर्ड हो जाएगी. एडवांस में कभी इनकम मत दिखाओ, बेचोगे तब अपने आप आ जाएगी, तब रिकॉर्ड करना. ठीक है? दैट इज फ्री सैंपल सोल्ड लाइक सेल ऑफ गुड्स. डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स ऑफ 500 एज फ्री सैंपल एंड प्रिंटिंग एरर है, पेड 1,000 एज एडवर्टाइजमेंट. पेड 1,000, पेड नहीं लिखा उधर, पेड 1,000 एज एडवर्टाइजमेंट.
distributed goods of 500 as free sample and paid 1000 for advertising. Who will answer Advertisement. this? Wait. Forum Malavia, please answer this. Advertisement account debit Yes. to goods distributed as free samples. That's it. To Oh, cash. Cash. To cash. And paid bhi hai na. You are doing two things. Free samples mein you are given 500 and paid 1000 for advertising. Paid. मतलब पैसे भी गए. 1000 आपने एडवर्टाइजमेंट बिल चुकाया, कुछ होर्डिंग प्लकार्ड वगैरह रहेंगे आपके, पैम्पलेट ब्रोशर्स, और आपने गुड्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया. एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट. अभी एनएम मिठी बाई स्पेशली, ओके, एनएम मिठी बाई, ये दो कॉलेजेस है ना, इसमें गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल के जगह पे परचेज अकाउंट भी दिखा सकते हैं. इवन पोदार यूजेस इट समटाइम्स. एनएम मिठी बाई पोदार, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल के जगह दे माइट यूज परचेज अकाउंट. ओके, तो यू कैन यूज परचेज अकाउंट. इसका कंसेप्ट क्या है मैं बता दूंगा आपको बाद में. तो फिलहाल यू कैन राइट स्लैश परचेज करके. ओके, तो कॉलेज में कंफर्म कर लेना. Sir. बोल रहे तो गुड्स, परचेज बोल रहे तो परचेज. या Sir, if we write this, then it is wrong. व्हाट? Goods are distributed as free samples. इट इज नॉट रॉन्ग, बट समटाइम्स, एक अभी लास्ट ईयर बोला था, उससे एक साल पहले बोला था, तो समटाइम्स टेल यू कि कोई डिवीजन में बोलेंगे आपको कि इंस्टेड ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल यूज परचेज अकाउंट. तो खाली परचेज अकाउंट लिख देने का उधर, ऐसा गुड्स के जगह. अल्टीमेटली ये सब गुड्स मर्ज होके परचेज में ही जाने वाला है. गुड्स जैसा कोई अकाउंट बचेगा ही नहीं लास्ट में. ओके, तो इसका लॉजिक क्या है? बेसिकली आपने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया. एक्चुअल कंसेप्ट आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग अभी थियरी करेंगे 3-4 लेक्चर बाद, तब आपको मैं बताऊंगा. ओके, तो डायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है वो गुड्स का होता है, वो कम हो रहा है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ रहा है एडवर्टाइजमेंट का, वो आप कर रहे हो एक्चुअली यहाँ पे. तो एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स के जगह अगर परचेज बोल रहा है तो परचेज लिखना, अदरवाइज गुड्स आर फाइन. ओके, actual concept I'll explain within 3-4 lectures. Will come across that direct indirect expense, that time तभी अच्छे से समझ आ जाएगा. Advertisement to goods distributed as free samples to cash क्यों आया? Because we paid rupees 1000. Because we paid 1000. Yeah, so total expense is how much? Total expense is 1500 debit. You can think like this right now. Goods are going out, so 1000. And 500 is cash is going out. Goods are going out and cash is going out. Expense incurred. बराबर है? Expense बढ़ा, asset घटा, debit credit. Install neon sign boards of 1000 through credit card. Nishisha, install neon sign boards through credit card. What should be the entry? Sir, advertisement account to bank account. Advertisement account debit to bank account. Perfect. Advertisement account debit to bank account, that will be 1000 rupees. Advertisement to bank will be 1000. Credit card se pay kiya hai. Neon sign boards, jagmag lighting are all for the purpose of advertisement. Remember? Sir, if it was paid for neon sign boards rupees 500, so we could have said right advertisement to cash. हाँ, credit card, bank check, RTGS कुछ नहीं दिया तो फिर it is cash. Advertisement to cash, right? Perfect. हो गया ये वाला. Next problem, you take problem number 8. 8th problem. Problem number 8 ले लो सब लोग. 8th sum. See sum number 8. Vijay, our debtor to an extent of 1000 has turned insolvent. Palak, Vijay, our debtor to an extent of 1000 has turned insolvent. Palak, can you tell me what should be the entry for this? Bad debts account debit to Vijay account. Very good. Bad debt account debit, क्योंकि लॉस हो गया अपना, to विजय अकाउंट. परफेक्ट. बैड डेट्स एक्सपेंस, विजय से पैसा नहीं आने वाला है, 1000 रुपीज, सो क्रेडिट. ओके, डेटर कम हो गया.
अभी पैसा नहीं आएगा। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू विजय, व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंस इज बैड डेट? कैश एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंस? बोलो बोलो। नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस। ये एक छोटे से बैड डेट के वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के झोल करती है। कैसे? सुनना ध्यान से। आपने सेल किया हुआ है 2000 रुपीज का, तो आपने क्या एंट्री की होगी? विजय टू सेल 2000। तो सेल आपकी इनकम हो गई, है ना? सेल आपकी इनकम हो गई। और प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हो आप? इनकम माइनस एक्सपेंस। तो ईयर के एंड में कंपनी क्या बताएगी? हमारा 2000 का सेल है और 500 का एक्सपेंस हुआ, 1500 का प्रॉफिट है, ऐसे करके दिखा देगी। तो शेयर होल्डर सब खुश, बैंकर सब खुश, गवर्नमेंट खुश, टैक्स भर रही है कंपनी, लोन देने को रेडी हो जाएंगे बैंकर्स। अब क्या होगा? जो डेटर था विजय, उससे कितने लेने थे आपको? 2000। और वो डेटर ने आपको नेक्स्ट ईयर 2000 के जगह खाली 1000 दिए, तो 1000 क्या हो गया आपका? बैड डेट। तो अब जो आपने दिखाया हुआ था प्रॉफिट, जिसपे सब राजी खुशी कूद वाद के आपको पैसा मिल गया था, वो आपका 1500 था एक्चुअली। 1500 का प्रॉफिट था कि नहीं था? 1500 के जगह आपका क्या हो गया? 1000 का लॉस हो गया यहाँ। तो आपका नेट प्रॉफिट अभी कितना बचा? 500। 500। हाँ, तो ऐसे उल्लू बनाती हैं कंपनीज। कंपनीज क्या करती हैं? सेल्स वेल्स सब बता देती हैं, बट वो सब झोल झपाटा डेटर में होता है। डेटर से पैसा आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम लोग क्या चेक करते हैं? कैश प्रॉफिट कितने हैं कंपनी के। ओके, तो कैश प्रॉफिट आपको अलग से स्टडी करके निकालने पड़ते हैं, क्योंकि आपका जो अकाउंट्स होता है वो अक्रूवल सिस्टम पे होता है। अक्रूवल सिस्टम मैंने अभी आपको बोला, व्हाट इज अक्रूवल सिस्टम? अर्नड इनकम जो है वो दिखा देते हो आप। सेल्स इनकम क्रेडिट हुई, दिखा दिया आपने। ओके, तो अर्नड इनकम आप जब भी दिखा दोगे तो वो आपके प्रॉफिट को इन्फ्लेट करके दिखाएगा, बट सामने उतना कैश भी आना चाहिए। कैश आ रहा है तो अच्छी बात है, इट्स अ गुड कंपनी, बट कंपनी इनकम्स दिखा रही है और पीछे डेटर से सब बैड डेट बैड डेट बैड डेट हो रहा है, तो देन भैया झोल झपाटा चालू है। ओके, so this झोल happens in many companies in India also, abroad also। इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। ओके, ये आगे जाके आप लर्न करोगे, कोई सीए कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, एमबीए फाइनेंस कर रहा है, सीएफए कर रहा है, सब यही स्टडी करना है आपको कंपनीज का। ठीक है, तो ये बैड डेट्स टू विजय। We have it is a actually a loss to us, or we didn't get that income only. We didn't get that income na. We showed that income because sales happened na. Accrual system, receivable, income receivable to income होता है ना। इनकम का टाइम आ गया, इनकम क्रेडिट करो, अर्न कर लिया, और डेटर से पैसा मिलना बाकी है, रिसीवेबल। अब जब पैसा आ जाता तो कैश टू डेटर, तो नो प्रॉब्लम, तो जेन्युइन इनकम हो गई। बट पैसा आया ही नहीं, तो जो ओरिजिनल सेल्स की इनकम थी वो भी कम हो जाएगी ना तुम्हारी, ड्यू टू द लॉस ऑफ बैड डेट्स। तो एक्चुअली कंपनी इतना कमा ही नहीं रहा है, तुमको फेक अच्छा ग्लॉसी पिक्चर बता के बैंक से लोन ले लिया कंपनी ने, और फिर लेके उड़न छू। ये बाद में पता चलेगा। Like Nirav Modi. हाँ, नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, इन्फ्लेटेड इनकम, यस बैंक का स्कैम हुआ, डीएचएफएल, दिल्ली हाउसिंग फाइनेंस, आईआईएफएल, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लीज लिमिटेड, ये सब का इश्यूज हुआ है। ऐसा पिक्चर्स दिखा के लोन्स उठा लिए और फिर पता चला अंदर तो वो पड़ा है। सो हमें हमेशा अलर्ट रहना है कि इनकम देख के, वो इनकम का पीछे रीजन क्या है, डेटर से पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कंपनी का स्टॉक में कितना पैसा लगा हुआ, ये सब आप आगे लर्न करोगे हायर स्टैंडर्ड्स में, एनालिसिस में आएगा ये, तो ऑडिट में भी लर्न करोगे। तो पूरी स्टडी करनी जरूरी है, ऐसा खाली प्रॉफिट देख के खुश नहीं होना। देन Ram, our debtor of 5,000 becomes insolvent. He was able to pay 40 paise in a rupee. Forum Nathani. Ram, our debtor, became insolvent. He was able to pay 40 paise in a rupee. Forum Nathani. Bad debts account debit to cash account debit to Ram account. Perfect. Bad debts account debit, cash account debit to Ram account. Bad debts account debit, cash account debit to Ram. How much?
is bad debt, Forum, Nathani? 2000. No, 3000. 40 paise was paid. So 3000 is bad debt. 60 paise did not pay. And 2000 is cash and 5000 is Ram. Is this clear? All of you got that? And Forum, Nathani, how was your paper? So this means he has paid 60% of the amount, no? Sorry, 1 minute. Forum, 1 second. Vidushi, what are you asking? In this transaction, it means he has paid 60% of the amount and 40% is lost, no? 40 paise means 40%. 40% you received, 60% you did not. That is bad. Okay. Yes, Forum? How was your paper, Forum, Nathani? Was good, but I did many mistakes and cuttings. Why? So then how it is good? I was a little confused in the accounts. I mean, you did not prepare properly. Why? I कभी करने का प्रिपेयर टेस्ट के बाद? नहीं. So remember now, practice. Couple of sums I'll give you, 2-3 sums. Please practice those. Okay. Third sum, Rahim, our debtor to the extent of 5000 becomes insolvent. He was not able to pay 40%. He was not able to pay 40%. Pujan Bansali, he was not able to pay 40%. That means he paid 60%. 60%. Entry क्या बनेगी? Cash account debit, bad debts account debit to Rahim account. Perfect. Cash account debit, bad debt account debit to Rahim account. Similar entry है जो ऊपर हुई थी, but amounts change हो जाएंगे. अभी cash में कितना आएगा पूजन? 3000. 3000. Bad debts में 2000. and 5000. Rahim में 5000. If you got that, not able to pay 40% मतलब paid 60%. Okay. Fourth one, Virali. An amount of 500 previously written off as bad debt now recovered from Rahim. Rahim account debit to bad debts recovery account. यही गड़बड़ पेपर में भी किया है शायद. Cash to bad debts. Cash to bad debts. Cash account debit to bad debts recovery. रहीम का नाम आएगा ही नहीं. देखो रहीम यहाँ पे क्रेडिट हो गया है, बंद हो गया है. 5000 लेना था ना, डेटर था 5 का. अभी कुछ नहीं, क्रेडिट खत्म. So bad debts recovery. Bad debts recovery, sorry. Bad debts recovery account will be the amount. रहीम का अकाउंट आएगा ही नहीं क्योंकि रहीम का अकाउंट तो शट कर दिया है, क्लोज कर दिया, क्रेडिट करके बंद हो चुका है. अभी कुछ पैसा लेना देना बाकी नहीं है. Bad debts recovery is your income, new fresh income. So cash to bad debts recovery 500. Okay. Recovered recovery, cash to bad debts recovery. Okay. Income for us, new income. Remember that. बोलो, समझ में आई बात? All of you clear? Any doubts? Tell me. Comfortable? पेपर्स आज शाम तक ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुके हैं. हो सकेगा तो आज शाम तक या फिर कल तक आपको मिल जाएंगे. एंड दैट्स इट. आपको होमवर्क करना है आज. असाइनमेंट का ही होमवर्क है. ओके. आपको कौन सा सम होमवर्क करना है बताता हूं मैं. Question number 11. Eleventh question. I see 11th question. I think that yeah, पीछे भी 2 है. There are 15 transactions. बीच में blank रह गया एक side. 11th question, there are 15 transactions. Can you guys see that? 11th question. Accounting equation भी पूछा है आपको. Accounting equation अभी तक हमने किया नहीं है. Okay? वो भी हम लोग आगे solve करेंगे journal के बाद. तो 11th question का journal आपको करना है without narration. That is the homework. ठीक है? मिला आपको? हेलो. नरेशन लिखना है.
No narration. Skip the narration. Okay. Now this question is from CA Foundation. Okay. CA Foundation का question. Okay. Easy लगेगा आपको, but है CA Foundation का, और भी डेप्थ में हम लोग सीखते हैं वहाँ पे, तो अच्छे से सॉल्व करना. कुछ डाउट्स है तो let me know. And 11th question, that's for homework. We are meeting on Saturday now, right? Saturday morning, same difficult questions. Okay, journal के करेंगे. डाउट से तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव. टाटा बाय बाय. सर Bye, ये sir. सीए Thank you, sir. फाउंडेशन में भी यही सब Sir, आता thank है. you so much.